Namaste Gurkulians. I hope all of you are fit and fine at your homes. This is our next video lecture of unit structure of atom. In the last video lecture we have discussed all about de Broglie and Heisenberg uncertainty principle. According to de Broglie, we can calculate wavelength of a particle which is equal to h by mv, or we can say that h by p. And according to Heisenberg uncertainty principle means impossible to measure the uncertainty with position and momentum of a particle. Delta x into delta p will be greater than and equal to of h over 4 pi. So our today topic is quantum number, and it is very important topic, quantum numbers. What are quantum numbers? Quantum number is simply a set of 4 numbers. Yeah, we can say that set of 4 quantum numbers which tells us about complete information about the electron present in the atom, which gives about the complete information of the all the electron present in the atom. So we can say that quantum number may be defined as set of 4 quantum number, set of 4 quantum numbers which gives complete information about all the electrons present in an atom. किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उनके इंफॉर्मेशन हमें किससे मिलेगी? विद द हेल्प ऑफ द क्वांटम नंबर. विच आर द these informations? These may be location, energy, where is located energy of the electron, and one is the type of orbital occupied, type of orbitals occupied, shape and orientation of orbital. Shape and orientations of orbitals. Shape and orientations of orbitals in which different electrons are occupied. So quantum number is simply वो नंबर है जो हमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की complete information in an atom gives us. All the electrons which are present in an atom, their information we get with the help of quantum number. First is the location. Location means कि इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल के अंदर प्रेजेंट है. We can find out with the help of और क्वांटम नंबर. एनर्जी, जिस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, व्हाट इज इट्स एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इन दैट सेल. से नेक्स्ट इज टाइप ऑफ द ऑर्बिटल, मीन्स किस तरह का ऑर्बिटल है, किस सब सेल में, जैसे एस सब सेल है, पी सब सेल, डी सब सेल, वहाँ पर ऑर्बिटल कौन सा है. एंड द शेप, किस तरह के ऑर्बिटल्स या उनकी क्या ओरिएंटेशन है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर. First is principal quantum number, which is represented by capital N. Second is azimuthal quantum number, which is represented by L. And third is magnetic quantum number,
विच इज रिप्रेजेंटेड बाई m या फिर ml। एंड लास्ट फोर्थ टाइप इज स्पिन क्वांटम नंबर। So we will discuss this one by one. As the first quantum number, this is principal quantum number, which determine about the size of the atom या in which electron is present या about the cell। मीन्स ये हमें किसके बारे में बताएगा? सेल के बारे में बताएगा। which is represented by n। azimuthal quantum number represented by l, means number of the subcell present in the cell। ऑर्बिटल या सेल के अंदर कितने सब सेल प्रेजेंट हैं, उनकी एनर्जी ऑफ द सब सेल, एनर्जी ऑफ द सेल, एनर्जी ऑफ द सेल बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एनर्जी ऑफ सब सेल। देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सब सेल प्रेजेंट इन ए सेल, सो देयर एनर्जी इज गिवन बाय एजीमुथल। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विच टेल्स अस अबाउट द orbitals which are present in a subcell। And last is spin quantum number which tells about the orientation of electron when they are present in the external magnetic field। means electrons clockwise revolve करें, anti clockwise, orientations के बारे में हमें बताएगा। So let's discuss one by one। Our first quantum number is principal quantum number। Principal quantum number represented by स्मॉल n। तो हमें ये क्या बताता है? व्हाट डज दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? इट टेल्स द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। इट टेल्स अस द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल और सेल। मीन्स हमें किसके बारे में बता रहा है? अबाउट द सेल और द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। n कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 1 2 3 4 स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस बट नॉट इक्वल टू 0। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 नहीं होगी बट इट्स वैल्यू कैन रेंजिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 etc। these various principal also designated by, these are also designated by K L। you have studied in 10th class K L M N O P इस तरह से। and this first cell which is starting from the nucleus, इस तरह से जैसे हम स्टडी करते हैं, this is our nucleus, these are our different cells around the nucleus, these are called as the K cell, L cell and M cell and N cell। these are the various cells starting from the nucleus which is represented by N and these may be K L M N and also called as the 1 2 3। तो ये क्या देता है हमें? it gives प्रिंसिपल क्वांटम नंबर gives the average distance from the nucleus। इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज डिस्टेंस, अगर इलेक्ट्रॉन हमारा L सेल में है तो इट गिव द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू दिस। तो एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द सेल। तो साइज ऑफ द एटम के बारे में बताया किसने? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने। या डिटरमाइन द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इट गिव एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट हो गया साइज के बारे में, सेकंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसा हमने बोहर मॉडल के अंदर स्टडी किया था, किसी भी सेल के अंदर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, तो एनर्जी का फॉर्मूला हमारा क्या था? एनर्जी इन एनी सेल विल बी इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर me4/n² इंटू h²। तो हमने यहाँ सारी वैल्यूज पुट अप भी की थी, तो लास्ट में क्या रह गया था? n, नंबर ऑफ सेल।
और हम एक पॉइंट और यहाँ से देखेंगे कि एनर्जी, देयर इज द माइनस साइन फॉर एनर्जी एज द वैल्यू ऑफ एन। एन की वैल्यू जैसे जैसे यहाँ से इंक्रीज होगी तो टोटल न्यूमेरिकल वैल्यू विल डिक्रीज, बट डिक्रीजेज इन द माइनस। सो ओवरऑल वैल्यू वी कैन से दैट इट इज इंक्रीजेज। So when the number of the cells increases, energy of the electrons will also increases. So we can say that energy of electron in the various subcell increases, various cell increases in the order. सबसे ज़्यादा एनर्जी क्या बाहर वाली सेल में, फिर कम और न्यूक्लियस के पास बहुत कम एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। फिर अगर हम बात करें कि किसी भी सेल के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, दे आर 2n स्क्वेयर। यू कैन से दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल, किसी भी सेल के अंदर यू कैन फाइंड आउट बाई 2n स्क्वेयर। So all these are the information given by the first quantum number. This is principal quantum number. डिनोट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेड या डिनोटेड बाई n। ये हमें क्या बताता है, साइज के बारे में या सेल के नंबर के बारे में, एवरेज डिस्टेंस के बारे में फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। फिर हमें इसने किसके बारे में बताया, एनर्जी के बारे में। एनर्जी जैसे जैसे न्यूक्लियस से बाहर जाएंगे अलग अलग सेल्स की एनर्जी क्या है, इंक्रीज। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए एनर्जी विल बी 2 पाई स्क्वेयर me4 और n स्क्वेयर इंटू h स्क्वेयर। और मैक्सिमम, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन ए सेल इज इक्वल टू 2n स्क्वेयर। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट क्वांटम नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वांटम नंबर। दिस इज आवर सेकंड क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। Azimuthal quantum number. This quantum number is represented by L. Small l. And what it tells, this quantum number tells us about the number of subcell present in the main cell. So we can say that azimuthal quantum numbers tells us about number of subcells present in main cell। मेन सेल के अंदर सब सेल कितनी प्रेजेंट है, इट इज डिनोटेड, इट इज फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द एजीमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय L। इट आल्सो गिव एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सब सेल। तो सेकेंड पॉइंट, टू फाइंड आउट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, angular momentum of the electron present in subcell। Angular momentum you can find out by the formula, you can use L into L plus 1 under the root h by 2 pi। So you can calculate angular momentum with the help of this third point, relative energy of various subcells। various subcells मीन्स किसी भी सेल के अंदर जो अलग अलग सब सेल्स प्रेजेंट है उनकी एनर्जी, जैसे हमने सेल के केस में डिनोट किया KLMN फ्रॉम द न्यूक्लियस, स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूक्लियस एंड आउटसाइड energy will increase। Same here, different types of the subcells are present, these may be S, P, D, all these are of the subcells which are present, so their energy can be calculated by using this। And the shape of the subcells, energy, relative energy and shape,
of subcells. Now what is the relation between the principal quantum number and azimuthal quantum number? The value of azimuthal quantum number is ranging from 0 to n minus 1. N is the principal quantum number. So next point is value of L means azimuthal quantum number ranging from 0 to n minus 1. अब देखो एग्जाम्पल से लेट्स डिस्कस इट. इफ n is equal to 1 because value of n cannot be 0, so the value of L will be equal to 0, only one value, and for the 0 it represent S subcell. So when principal quantum number value is 1, then azimuthal quantum number या number of cell is equal to 1 and it is S subcell. Second is if n is equal to 2, so the value of L is 0 and 1. For the 0 के लिए क्या आएगा, अगेन S, और 1 के लिए it will be P subcell. Next, if n will be equal to 3, so the value of L is 0, 1 and 2. So these will be S, P and D subcell. And if n will be equal to 4, so the value of L will be 0, 1, 2 and 3, and they will become S, P, D and F. So you can say that value of L, if it is 0, 1, 2, 3, so subcell is S, P, D and F. S, P, D, F, G, H आगे इस तरह से आएंगे, मैक्सिमम हमारे F तक आ जाते हैं मोस्टली. अब S सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, जो हमें किससे पता लगेगा, एक ही इसमें क्या आता है, ऑर्बिटल. ओके, तो यहाँ से हमें क्या है, इफ़ वी नो द वैल्यू ऑफ n, यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ सबसेल्स प्रेजेंट इन इट. अब एक पॉइंट और यहाँ से कि n इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 1, तो L की वैल्यू क्या आई, ओनली 1, नंबर इट विल बी 0, एंड इफ n इज इक्वल टू 2, तो ये वैल्यूज भी क्या आई हैं, दीज आर आल्सो 2. इफ n इज इक्वल टू 3, दीज वैल्यूज आर आल्सो 3, n इज इक्वल टू 4, दीज वैल्यूज आर आल्सो इक्वल टू 4. सो यू कैन से दैट द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या द सेल, जिस सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उतनी ही हमारी क्या होंगी, सब सेल. अगर हमारी फर्स्ट सेल है तो उसमें सब सेल क्या है, 1. अगर हमारी सब सेल का नंबर क्या है, 2, देन सब सेल आर ऑल्सो 2, मीन S एंड P या फिर S, P, D. अंडरस्टैंड? सो यू कैन से दैट द नंबर ऑफ सेल determine the number of subcell present in the cell. Okay, all this is all about the azimuthal quantum number, and the energy we also calculate from this azimuthal quantum number, energy of electron in different subcell. जैसे एक ही सेल के अंदर, मान लो हमने एक सेल ली है, सेल का नंबर दिस इज 3, so the number of subcells present are also 3, and these are S, P, D and F. S, P, D 3 हमारी सबसेल इसके अंदर प्रेजेंट. एक ही सेल में एनर्जी ऑफ सबसेल आल्सो वेरीज. इट मीन्स S हैज़ लोअर एनर्जी देन P, देन D एंड देन F. सो दिस कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग azimuthal quantum number, कि एनर्जी ऑफ द डिफरेंट सबसेल्स प्रेजेंट इन ए सेल कैन बी कैलकुलेटेड एज. So this is all about the azimuthal. We can calculate azimuthal from principal quantum number. Now our third is magnetic quantum number. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, ओरिएंटेशंस के बारे में. थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय m या फिर ml. कोई भी एक इसमें आ जाएगा, m और ml.
what it denote? When electron is present in the external magnetic field, there are different orientation for the electron around the nucleus are present. So this quantum number tells us about number of preferred orientation of electron, number of preferred orientation of इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स किस ओरिएंटेशन के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा किसी भी सबसेल के अंदर, इन ए सबसेल। सबसेल मीन्स जैसे हमारे ऑर्बिटल्स उसके अंदर आ चुके हैं। फिर इसमें आएगा कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर सबसेल की या मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर से हम रिलेट करें, सो द वैल्यू ऑफ दिस value of magnetic quantum number ranges from minus L to plus L. What is minus L and plus L? These are azimuthal quantum number. So we can including also 0. So we can also say that its value is including 0. We can also say that if it is minus L plus L, so these are the 2L and 1 0 is also present, so its value also ranges from 2L plus 1. Value of magnetic quantum number is 2L plus 1. L is the azimuthal quantum number. Let's discuss if तीनों को एक साथ ले लेते हैं। इफ n इज इक्वल टू 1, तो L की वैल्यू हमारी 0 to n minus 1, so it is 0. So value of m is also equal to 0. If n is equal to 2, so L will be 0 and 1. If it is 0, so m is also 0. And here m, what is the value of m here? Minus L to plus L, so it will be minus 1, 0 and plus 1. These are the three values for the magnetic quantum number when L is equal to 1. L is equal to 1 ये कौन सी उसके अंदर आया था? It is in the p subcell, and you know in the p subcell number of orbitals are 3 and their value will be minus 1, 0 and plus 1. ये हमारी वैल्यू p x हो जाएगा, p z and p y. These are the three orbitals present in a subcell. नेक्स्ट हमारा क्या है कि अगर हमारा n क्या है 3 है, तो L की वैल्यूज क्या हो जाएंगे? इट विल बी 0, 1 and 2. सो वैल्यू ऑफ m फ्रॉम हेयर इट इज 0 and from here m is equal to we can say that it is minus 1, 0 and plus 1, and here value of m is minus 2 to the plus 2, so minus 2, minus 1, 0, plus 1 and plus 2. So there are 5 orbitals present in the subcell having azimuthal quantum number value is 2, and it is for the d subcell. You know number of orbitals in the d subcell are 5. These are the 5 d orbitals in the d subcell, 1, 2, 3, 4. Their names can be d xy, d yz, d xz, d z square, and this is dx square y square. These are the 5 orbitals present in the d subcell. So you can also calculate value of magnetic quantum number and value of azimuthal, and this is our principal quantum number. So these are the 3 types of orbitals. We have discussed principal, azimuthal, and third is magnetic. Here one point is, in case of principal quantum number, energy increases as we move out from the nucleus, and in case of the subcell, energy of the different electron in the same subcell also increases. जैसे हमने देखा कि एक सेल के अंदर हमारा s p d f ये सब सेल्स प्रेजेंट हैं, तो एनर्जी ऑफ दिस सब सेल्स आल्सो इंक्रीजेज. बट इन ए सब सेल if orbitals are present, there is in the p subcell 3 orbitals are present, their value is equal, value of energy is equal in a subcell. Value of energy
in a subcell is equal. So these orbitals are called as the degenerate orbital. Orbitals present in a subcell are called as degenerate orbital. What do you mean by degenerate orbitals? The orbitals which have the same energy. So this is about the third quantum number. Now our fourth quantum number. This is spin quantum number. Fourth is स्पिन क्वांटम नंबर. इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एस से, या फिर इसका दूसरा कई जगह पर ये एम एस भी बता देता है. दिस टेल्स अस अबाउट द प्रेफर्ड ओरिएंटेशंस. इलेक्ट्रॉन्स किस ओरिएंटेशन में न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है. इट मे बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो इट टेल्स अस अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. टेल्स अस अबाउट द direction of spinning of electron around the nucleus. It may be spin in clockwise or anti-clockwise direction. So in case of clockwise we can say that it is plus half, and in anti-clockwise value simply for the one electron is plus half and minus half, or we can also represent by in the up arrow and in the down arrow for the spinning of electron. If all orbitals are fully filled, net magnetic moment इस केस में हमारा क्या आ जाएगा, जीरो, because clockwise and anti clockwise will cancel each other. जैसे हम S की बात करें तो यहाँ पर एक ऊपर तो एक इलेक्ट्रॉन क्या नीचे, इसमें दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर नेट स्पिन क्या आ जाएगी, जीरो. P की अगर हम बात करें 1 2 3, अगर फुली फिल्ड है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगी, जीरो. यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट स्पिन मोमेंट. स्पिन मोमेंट कैन बी एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन. Angular momentum of spinning electron, it can also be calculated as into s plus 1 under the root h by 2 pi. और दूसरा इसमें एक और यहाँ से हम निकाल सकते हैं which is called as the spin magnetic moment which is represented by mu s. It is n into n plus 2 under the root. और यहाँ से n क्या आएगा, n is number of unpaired electron. नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे, s में जैसे 1. p की अगर हम बात करें अब इट इज हाफ फील्ड, द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आर 3. ऐसे d में अगर हाफ फील्ड है 5, f में है सो देयर आर द 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल. इसकी अगर हम यूनिट की भी बात करें तो इट इज़ बोहर मैग्नेटॉन. आगे हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन. और अगर ये सारे यहाँ पर पेयर्ड कंडीशन में हमारे मिल जाते हैं तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज आवर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस. इफ एनी वन अनपेड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल्स देन इट इज कॉल्ड एज पैरामैग्नेटिक. इसके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट आगे चैप्टर्स में स्टडी करते जाएंगे. तो इस पर एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, किस तरह क्वेश्चंस क्वांटम नंबर्स पे तुम्हारे एग्जाम में या आगे कम्पिटिटिव में पूछे जा सकते हैं. So let's discuss first question. So our first question is, using SPDF notation describe the orbital. Question first, using SPDF notations describe the orbital. Describe the orbitals
विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। हमें कुछ नोटेशंस दिए हैं, हमें बताना है कि इलेक्ट्रॉन या कि ऐसे ही नोटेशन होगा। फर्स्ट इज n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1। सेकेंड इज n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 0। थर्ड इज n इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू 3। एंड फोर्थ इज n इज इक्वल टू 3, l विल बी इक्वल टू 2। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें साथ के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट परमिटेड। कौन सा क्वांटम नंबर नहीं बनेगा ये हमें बताना है। फर्स्ट इज n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू -1 and s is equal to +½ Second is n is equal to 2, l is equal to 1, m is equal to -1 and s is equal to -1/2 Third is n is equal to 2, l 0, m also 0, s is also 0 Fourth, n is equal to 2, l 1, m 2 and s is 1/2। तो इस तरह के हमारे क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स के अंदर। सो फर्स्ट इज यूजिंग SPDF नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। हमें कुछ क्वांटम नंबर्स दिए हैं, उनको हमें डिनोट करना है। जैसे n हमारा 2 है तो हमें पता है n हमारा किसको डिनोट करता है, n डिनोट्स अस अबाउट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा क्या है 2। l अबाउट द सब सेल, तो l की वैल्यू अगर 0 है तो s, 1 है तो p। तो ये किसको डिनोट करेगा 2p को। इस केस में अगर हम देखें n इज इक्वल टू 4 तो इट इज 4। s की वैल्यू क्या है 0, 0 किसको रिप्रेजेंट करता है s को, सो इट इज 4s। इस केस में n क्या है 5 और ये क्या 3, 0s 1p, 2 क्या है d, 3 इज f, सो इट इज 5f। एंड दिस वन 3 फॉर द 2 स्टूडेंट्स, 2 के लिए इट विल बी सो इट इज d, 2 3 d, 0 1 2 s p d। क्लियर हुआ ये फर्स्ट क्वेश्चन कि हमें क्या बताना था, इनका यूज करके वी हैव टू फाइंड आउट ऑर्बिटल। हो जाएगा इस तरह से नोटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। सेकंड टाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड आउट कि विच ऑर्बिटल या वैल्यूज ऑफ दीज 4 क्वांटम नंबर इज परमिटेड, या वी कैन से दैट विच वैल्यूज इज करेक्ट एंड सेकेंड वन इज इनकरेक्ट। सो यहाँ से देखिए n की वैल्यू, अभी एक बार इसको रब कर लेते हैं। जो हमने डिस्कस किया है अभी तक वो सारा इसमें यूज करके तब इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर पाएंगे। सो तो देखिए जैसे हमें फर्स्ट पार्ट हमें यहाँ पर गिवन है, तो इन द फर्स्ट पार्ट n की वैल्यू हमारी कहाँ से होती है 1 2 3 4 इस तरह से जाती है। l की वैल्यू हमारी 0 से लेके और n-1 तक nl। m की वैल्यू जो होती है -l से लेके +l। और ms या स्पिन क्वांटम नंबर, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, इट विल बी माइनस और +1/2। तो ये हमारा क्या है चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज़ का एक तरह से क्या है निचोड़। यहाँ से अगर हम देखें n की वैल्यू 2, अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, अगर ये 2 है तो 0 और 1, लेकिन ये क्या है 2, क्या ये पॉसिबल है, सो इट इज़ नॉट परमिटेड। समझ में आ रहा, फर्स्ट यहीं से पता लग गया। m की वैल्यू आगे देखेंगे जब हमारा यहीं से पॉइंट क्या हो रहा है रॉन्ग हो गया। सेकेंड पॉइंट n इज इक्वल टू 2, इफ n 2 है तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 0 और 1 हो सकती है, तो 1 गिवन है, तो ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट।
अब m की वैल्यू क्या हो सकती है 1, तो -1 से +1, तो -1 है इट इज, और स्पिन क्या, तो ये वाला क्या है इट इज परमिटेड। n की वैल्यू l की, m की और सारी क्या है करेक्ट है। थर्ड केस n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 0 और 1, इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट। सो m की वैल्यू क्या है -l टू +l, तो यहाँ पर क्या 0 है तो ये भी क्या हो जाएगी 0, और s की वैल्यू क्या 0 हो सकती है, ये इनकरेक्ट होगा। s की वैल्यू तो +½ या -½ आएगी, सो इट इज आल्सो नॉट परमिटेड। पहले तीनों करेक्ट मिल गए थे बट लास्ट वन इज इनकरेक्ट। लास्ट पॉइंट इज n इज इक्वल टू 2, तो l की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है 0 और 1 है। m की वैल्यू लेकिन क्या -l टू +l 2 आ गई, तो ये इनकरेक्ट, सो इट इज आल्सो नॉट परमिटेड। बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको क्या है क्वांटम नंबर समझ में आए हैं तो कोई भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आप कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे क्वांटम नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वांटम नंबर से रिलेटेड एनसीईआरटी पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है सोल्व कीजिए। ओके, टिल देन टेक केयर।